بلیٹن کا آغاز کریں اور موسم کا حوال آپ کو بتائیں کہ سورج کا پارا ہائی ہے. گرمی شہریوں کو دن میں تارے دکھانے لگی. شہر میں موسم آج گرم اور خشک رہے گا. ہیٹ سٹروک کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں. مزید موسم کی کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے جو اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں. بالکل اگر بات کرتے ہیں چلے شہر لاہور کی موسم کی صورتحال کی تو تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ موسم گرم اور خشک ہی رہے گا. انفیکٹ آج جو ہیٹ ویو ہے وہ زیادہ فیل کی جائے گی. آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 46 کو ٹچ کرے گا. یعنی کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 45 ایک لارج سلیب تھی یعنی 45 ڈگری تک جاتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ 1 ڈگری اور اوپر چلا گیا. یعنی 46 ڈگری ٹیمپریچر جو ہے اس 46 کو ٹچ کرے گا. یعنی پراپر ہیٹ ویو محسوس کی جا سکے گی. پراپر ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی میں وہاں پر سروں پہ منڈلاتا رہے گا. تو شہروں کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ لائٹ کلر کے کپڑوں کو استعمال کریں جب گھر سے نکلیں. خاص طور پہ بائک پہ ٹریول کرنے والے لوگ اور پیدل چلنے والے افراد کو چاہیے کہ جب گھر سے نکلیں تو کوشش کریں کہ لائٹ کلر کے کپڑوں کو استعمال کریں. سر کو ڈھانپ کر رکھیں. واٹر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں. اور ایکو انڈیکس کی بات کرتے چلے تو ایکو انڈیکس شہر لاہور کا جو ہے وہ تقریباً 125 کے قریب وہ اوسط اس کی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. یعنی کہ ایکو انڈیکس میں بھی اضافہ ہے تو یعنی واٹر انٹیک زیادہ زیادہ رکھیں. سر کو ڈھانپ کر رکھیں. ماسک کا استعمال کریں. لائٹ کلر کے کپڑوں کا استعمال کریں تو کسی بھی قسم کے جو ہیٹ ویو کا خطرہ ہے اس سے محفوظ رہ سکے. کہ تازہ ترین صورتحال کی بات کریں موسم کی تو اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق موسم ہم اس وقت لبرٹی چوک میں موجود ہے اور یہاں پر اس ٹائم 31 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس وقت بھی 31 ڈگری ٹیمپریچر ہے. دوپہر کے اوقات میں جاتے رہتے درجہ حرارت جو ہے وہ 45-46 کو چھوئے گا. یعنی گرمی کی ہیٹ ویو پراپر محسوس کی جائے گی. یعنی کہ شہریوں کو چاہیے کہ خود کو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہیٹ ویو سے محفوظ رہنے کے لیے پریکاشنری میئر جو بتائے جاتے ہیں ان پر لازمی عمل پیرا ہوں. جی شکریہ مبین. مسلم لیگ نون کا پارٹی قوانین میں اہم ترامیم کی منظوری کا فیصلہ. پارٹی جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو ہوگا. مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری. الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق پارٹی صدر کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے. اجلاس سے قائم مقام صدر شہباز شریف اور نواز شریف خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو ہوگا. اجلاس کا ایجنڈا سامنے آ گیا. جنرل کونسل اجلاس میں پارٹی قوانین میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی. مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر شہباز شریف اور پارٹی قائد نواز شریف خطاب کریں گے. الیکشن شیڈیول کے مطابق 27 مئی کو پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی 28 مئی کو صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان جمع کروائے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال دوپہر 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوگی. الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق مسلم لیگ نون کے نئے مرکزی صدر کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے. حسن رضا، لاہور نیوز. اپوزیشن کا ہتک عزت بل کی ہر فورم پر مخالفت کا اعلان. لاہور پریس کلب میں قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بھچر گفتگو کرتے بولے کہ ہتک عزت بل چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا. بل کی 12 شقوں میں تضاد ہے. ہتک عزت بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. متنازع بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. پنجاب اسمبلی سے پاس کیے ہتک عزت بل پر اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کا شدید احتجاج. سنی اتحاد کونسل کا ہتک عزت بل پر ہائی کورٹ جانے کا اعلان. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی لاہور پریس کلب آمد. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے کہا ہتک عزت بل کے مقاصد کچھ اور ہیں. یہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا. اس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے. پیپلز پارٹی کو بھی پیغام ہے کہ اس بل کی مخالفت کے لیے احتجاج کرے. پیپلز پارٹی بجٹ بھی پاس نہ ہونے دے. میں آج پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے آزادی صحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. آپ وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے گورنرشپ لی ہے, آپ نے ان سے پریزیڈنٹ شپ لی ہے, آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا بجٹ سیشن آ رہا ہے, آپ ان کا بجٹ پاس نہ ہونے دیں اگر آپ حقیقی طور پہ ساتھ ہیں تو. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ ہماری ترامیم کو نظر انداز کر کے ہتک عزت بل کو رات کی تاریکی میں پاس کیا گیا. اس کالے قانون کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کریں گے. گورنر پنجاب سے بھی ملیں گے. پھر ہماری کل گورنر پنجاب سے ملاقات ہے. میری کراچی میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہے. MKM سے ملاقات ہے. اس کے بعد ہم نے اب اشتہارات APNS اور PB اشتہارات دے گی. اشتہاری مہم چلائیں گے. ان کی کوریج کا بائیکاٹ بھی ہمارے اس میں لائے عمل میں ہے. ہمارے لائے عمل میں آئندہ جو اسمبلی کا سیشن ہوگا اس کا بائیکاٹ بھی ہے.
अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर का इस मौके पर मजीद कहना था कि हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को पैगाम है कि इनको इतना न ढांपें कि खुद नंगे हो जाएं, हत्ता कि इज्जत बिल पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी चाहती है हत्ता कि इज्जत बिल पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला पंजाब का शेर देख कर करेंगे। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी लाहौर पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हत्ता कि इज्जत बिल पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली बात हुई है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुनासिब स्पेस दी गई तो फिर काबीना में शामिल होने पर पार्टी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। अरकान असम्बली अली कासिम गिलानी, अली कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी भी इस मौके पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहजाद सईद चीमा और जहां आरा वट्टू का कहना है, हम अपनी रियासत और आइन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों और हारियों के हकूक़ की बात की है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में तफसीलात। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहजाद सईद चीमा ने कहा कि इदारों के दरमियान टकराव की कैफियत मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है। जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त चल रही है और जो आपस में इदारों के टकराव की फिजा इस वक्त मौजूद है, वो इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क के जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। जहां आरा वट्टू ने कहा कि हत्ता के इज्जत बिल बहुत अहम बिल है, मगर कीचड़ उछालने में सिर्फ मीडिया का हाथ नहीं। हमने हमेशा किसानों और हारियों के हकूक की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के, हारियों के, मजदूरों के हकूक के लिए बात की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा पिसे हुए तबके के हक के बारे में बात की है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मुल्क के लिए बदनामी और सुबकी का बायस बनने वाली कुव्वतों को लगाम देने की जरूरत है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। गुज़िश्ता रात शहर में आंधी से मुतासरा तरसीली निज़ाम भी कई घंटे मामूल पर ना आ सका। ट्रांसफार्मर ख़राब होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। आग बरसाती गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आग मचोली से शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी से मुतासरा तहसीली निज़ाम कई घंटे तक मामूल पर ना आ सका। तकनीकी खराबी और तारे टूटने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली रात भर बंद रही। लेस्को की बिजली की तलब 3500 मेगावाट से जायद है, जबकि NPCC की जानिब से लेस्को का कोटा 3800 मेगावाट मुकर्रर किया गया है। शॉर्टफॉल न होने के बायस कैटेगरी 1 और 2 पर जीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना था दिन भर बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी रहता है। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली की बंदिश के साथ पानी से भी महरूम रहते हैं। घंटे बाद जा रही है, घंटे बाद आ रही है, कभी 2-2 घंटे भी हो जाते हैं, 3-3 घंटे भी हो जाते हैं, बाकी कोई टाइम नहीं है पत्ती का। लोड शेडिंग की सर बहुत ज़्यादा सूरत हाल है। गर्मी शरीर देख सकते हैं आप कितनी पै रही है, तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल का तो आती है ना, बिजली तो आती नहीं है, बिल हमें घर आता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मनावा, बाटापुर, सब्जाजार, गुलशन रावी, चौबुर्जी और दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में 27 मई तक हीट वेव के खतरात की पेशगोई कर दी गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाने का खदशा। जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। PDMA की हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हीट वेव की लहर से लोधरा में 2 शहरी मुतासिर हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि मीडिया के जरिए शहरियों को हीट वेव के खतरात से आगाह किया जा रहा है। तमाम महकमे, मीडिया और अवाम बाहमी ताउन से हीट वेव का मुकाबला कर सकते हैं। सख्त धूप में मुशक्कत और गैर जरूरी घर से बाहर न निकलें। शहरी इमरजेंसी की सूरत हाल में PDMA हेल्पलाइन 1129 या रेस्क्यू 1122 पर कॉल करें। वासा इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। गर्मी के दौरान जरासीम मारने के लिए क्लोरीन की सप्लाई ना की जा सकी। बेशतर ट्यूबवेल्स पर लगे क्लोरीनेटर्स भी खराब हो गए। जरासीम वाला पानी पीने से गैस्ट्रो की बीमारी फैलने का अंदेशा पैदा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे और दर्जा हरारत बढ़ने से पानी में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जिनकी वजह से लोग गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला होते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए वासा इंतजामिया की जानब से ट्यूबवेल्स के पानी में क्लोरीन डाली जाती है। इस जरासीम कुछ केमिकल से पानी के जरासीम मर जाते हैं। पानी के अंदर मखसूस मिकदार में क्लोरीन डालने के लिए वासा की जानब से ट्यूबवेल्स पर नस्ब किए गए क्लोरीनीटर खराब हो चुके हैं या ट्यूबवेल्स ऑपरेटर्स ने बंद कर दिए हैं। अब अंदाजे से ही पाइप के जरिए ट्यूबवेल के पानी में क्लोरीन डाली जा रही है, जिसकी ज्यादा और कम मिकदार लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी जानब पानी से जरासीम मारने के लिए वासा ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन की अदम फरामी का इंकशाफ हुआ है। पानी में क्लोरीन ना डालने से शहर में गैस्ट्रो की वबा फैलने का अंदेशा है। वासा की दाता नगर सब डिवीजन में क्लोरीन की फरामी ना हो सकी। न्यू शादबाग तालाब वाली ग्राउंड के ट्यूबवेल नंबर 3 पर भी क्लोरीन गायब है। गुज़िश्ता 15 रोज से ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन ही नहीं पहुँचाई गई और क्लोरीन के ड्रम में सिर्फ पानी डाला गया है। दूसरी जानब रात की आंधी के सबब शादबाग में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो चुका है। बिजली की बंदिश से शादबाग के बेशतर ट्यूबवेल्स बंद हो गए। ट्यूबवेल्स बंद होने से शुमाली लाहौर के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे इंतजामिया और पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स खराब हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी नज़रअंदाज। लाहौर रेलवे स्टेशन के अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट खराब हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लगे 47 सिक्योरिटी कैमरों में से 35 खराब हैं। रेलवे स्पेशल ब्रांच की जानब से मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद CCTV कैमरे ठीक न करवाए जा सके। रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों में से जो दुरुस्त हैं उनका भी बैकअप मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं। मुसाफिरों के सामान को चेक करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं। सिक्योरिटी कैमरे खराब होने के बाद स्टेशन पर वारदातों में इजाफा हो चुका है। DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गिल का कहना है कि कैमरे खरीदने के लिए केस भिजवा दिया गया है। मंजूरी के बाद जल्द नए कैमरे लगा दिए जाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। NHA ने कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद कार पर 40 रुपये, वैगन का 70 रुपये, बसों को 130 रुपये टोल टैक्स देना होगा। कौमी शाहराहों पर टूल टैक्स में इजाफा। कार पर टूल टैक्स 30 से बढ़ाकर 40 रुपए, वैगन का 50 रुपए से 70 रुपए कर दिया गया। बसों का टूल टैक्स 30 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए हो गया। NHA की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक N55 कोहाट टनल पर कार के लिए टैक्स 100 रुपए, वैगन के लिए 320 रुपए, ट्रक के लिए 600 रुपए। इस्लामाबाद से पिशावर मोटरवे पर कार के लिए टूल टैक्स 350 रुपए, 12 सीटर वैगन के लिए 550 रुपए कर दिया गया। M1 मोटरवे पर बस के लिए टूल टैक्स 1000 रुपए, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार के लिए 500 रुपए, वैगन के लिए 750 रुपए। M3 मोटरवे पर ट्रक के लिए टूल टैक्स 2100 से 2500 रुपए कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर भी टूल टैक्स में इजाफा। M4 मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 650 रुपए, वैगन का टूल टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। M4 मोटरवे पर ट्रकों का टूल टैक्स 2600 से 3200 रुपए कर दिया गया। M5 मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 900 रुपए, वैगन का 1300 रुपए, जबकि ट्रकों का 3500 से 4500 रुपए मुकर्रर। M14 मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 550 रुपए, बस का टूल टैक्स 1900 रुपए वसूल किया जाएगा।